मत्ती रसूल की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 33 और 34 दो आयतें मैं आप सबके सामने पाक कलाम में से तलावत करने की जिसारत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं रकम करता है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यसु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो, आमीन। आज जो अनवान या मज़मून मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो है हमदर्द यसु या तरस खाने वाला यसु। तो द कंपैशनेट जीसस क्राइस्ट। यहां पर जो 34वें आयत के अंदर लिखा है, उसको उन पर तरस आया। तो आज हम इसी बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह जो तरस से भरा हुआ था, उसको उन पर तरस आया। किन पर? जब वो यरू की राह पर जा रहे थे तो दो अंधे उनको पुकारने लगे, और जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगे हैं तो वो भीड़ जो उसके साथ थी उनको चुप करवाने लगी। उन्होंने कहा, चुप रहो। लेकिन बाइबल यह फरमाती है कि वो और भी जोर से चिल्लाने लगे, और वो जब जोर से चिल्लाने लगे तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास लाओ। तो वो उसके पास गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं, हम देखना शुरू करें, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा, हम अंधे हैं और भीख मांग रहे हैं, हम पर रहम कर और हमारी आंखें खोल। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को उन पर तरस आ गया। यीशु मसीह जो तरस से भरे हुए हैं, यीशु मसीह जिसने तालीम दी, जब वो तालीम देता है तो उसने कहा कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दो, जो तुम्हारा चोगा ले ले उसको कुर्ता लेने से भी बाज ना करो, जो तुम्हें एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चले जाओ। यीशु मसीह ने हमदर्दी का सबक दिया, यीशु मसीह ने मोहब्बत का पैगाम दिया। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से तुम जानोगे कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु मसीह ने आपस में जो इकट्ठा रहने का दरस दिया है, मोहब्बत से रहने का दरस दिया है,
ایک دوسرے کے ساتھ چاہت اور ہمدردی کا جو درس دیا ہے وہ یسوع مسیح نے کہاں پر درس دیا؟ جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں تو ہمیں تعلیم کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ یسوع مسیح کی ہمدردی، یسوع مسیح کا طرز یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر ہے۔ اور یسوع مسیح اب شاگردوں کو کہاں پر تعلیم دے رہے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر۔ یسوع مسیح نے پہاڑ کے اوپر ان کو تعلیم دی، اور جو باتیں یسوع مسیح نے پہاڑ پر کہی ان میں طرز تھا، ان میں ہمدردی تھی، ان میں محبت تھی، ان میں چاہت تھی، ان میں خدا کی وہ رحمت تھی جو اس نے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور یسوع مسیح نے جب تعلیم دی ہے تو اس کے بعد یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی، جب وہ جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ایک عالم شرع جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے یہ یسوع کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہا تھا، یسوع کو آزمانے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا تو توریت کو کس طرح جانتا ہے، کس طرح پڑھتا ہے یا کس طرح لیتا ہے؟ تیرا پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ تو اس توریت کو جس میں 10 حکم لکھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حکموں پر تو عمل کرتا ہوں، میں سب حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ اور یہ بڑی بات ہے، ہم ایک حکم پر عمل نہیں کرتے۔ میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 10 حکموں میں سے ہم کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اور یہ شخص جو عالم شرع یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اس نے آ کر کہا حکموں کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو میں بچپن سے ہی مانتا آیا ہوں۔ تو کتنا وہ پارسا ہوگا، کتنا وہ وفادار ہوگا، وہ قرائت کرتا ہوگا، وہ دعا کرتا ہوگا، وہ خدا کے حکموں کو ماننے والا شخص تھا۔ لیکن ابھی بھی اس میں کمی تھی کہ وہ کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ وہ خدا یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ یسوع مسیح سے میں جب کہوں گا کہ میں تو یہ ساری شریعت پوری کرتا ہوں، سارے حکموں کو مانتا ہوں، تو یسوع مسیح مجھے شاباش دیں گے۔ اس لیے اس نے یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے ہمسائے سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو جب یسوع مسیح نے اس سے یہ فرمایا تو ایک تمثیل آگے پیش کی۔ نیک سامری کی تمثیل سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ نیک سامری جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص اسے ادموا زخمی پڑا ہوا دکھائی دیا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس کو اس پر ترس آیا اور اس نے اس کے زخموں کو میں سے دھویا، پوچھا اور اس کی جو ہے فرسٹ ایڈ تمارداری کر کے اسے اپنے گدھا پر، اپنی سواری پر لادا اور ایک سرائے کے اندر لے گیا، اور وہاں پر اس نے ایک بٹیارے کو 2 درہم دیے اور کہا کہ میں اور واپسی پر آ کر تمہیں دوں گا، اس کی تیمارداری کر۔ اس کو اس پر ترس آیا، اس لیے جب نیک سامری کو اس پر ترس آیا تو میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، ترس کس کے دل میں ہوتا ہے؟ ترس ایمانداروں کے دل میں ہوتا ہے، ترس دعا کرنے والوں کے دل میں ہوتا ہے، ترس یسوع مسیح سے پیار کرنے والوں اور ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے، ترس نیک دلوں میں ہوتا ہے، ترس پاک دلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ شخص نیک سامری جو تھا، اگرچہ غیر قوم سے ہے، سامری ہے، پھر بھی اس کے اندر ترس بنا ہوا ہے، اور
इसने उस पर तरस खाया, और जब इसने तरस खाया है, ये अपनी सवारी से नीचे उतरा है, इसने तरस खाया है तो उसके जख्मों को साफ किया है, इसने उस पर तरस खाया है तो उसको उठाकर अपनी सवारी पर लादा है, इसने इस पर तरस खाया है और सहराए में, यानी उस जगह की जो बेहतरीन जगह थी, जैसे आज हॉस्पिटल है, वहां पर पहुंचाया और उसने उस पर तरस खाया, इसलिए अपनी दौलत भी उस ईमानदारी के लिए दी, क्योंकि ये हमदर्दी है, ये इंसानी चाहत है, ये इंसान के लिए वो जज्बा है जो खुदा पैदा करता है, और खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इंसान के लिए अपने दिल में रहम रखता है। खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, वो ना सिर्फ कुदरत वाला बल्कि मोहब्बत से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ खुदा है। और आगे जब हम चलते हुए देखते हैं तो यीशु मसीह को एक और जगह पर तरस आया, एक कोढ़ी जो रात भर बाहर वीरानों में रहा, और जब उसको पता चला कि यीशु मसीह सुबह इस रास्ता से गुजर रहा है, तो वो उस रास्ता पर आकर खड़ा हो गया, और वो यीशु मसीह के सामने, जब यीशु मसीह भीड़ के साथ, शागिर्दों के साथ सुबह निकले हैं, गांव से बाहर आए हैं, तो वो फौरन कोई इल्जाम नहीं लगाया, यीशु ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनकी हौसला शिक नहीं करता। यीशु ने उनकी सलाम पूछा, और तूमा जिसने कहा था जब तक मैं उसके हाथों और पसली के शराब में अपने हाथ न डालूं, मैं यकीन ना करूंगा। तो यीशु ने फिर अगले हफ्ते आकर, जब शागिर्द सारे के सारे वहां थे, तो आकर यीशु ने तूमा से कहा, बेइतिकाद ना हो, अपने उंगलियां और अपने हाथ ला और इस पसली में और इन मेहू में डाल जो शराब है, मगर बेइतिकाद ना हो। यीशु मसीह ने उसे बुरा भला नहीं कहा, उसे कुछ नहीं ऐसा कहा। यीशु ने उस पर, उसके साथ हमदर्दी की, यीशु ने उसे छोड़ नहीं दिया, हमदर्दी की। यीशु ने पतरस के साथ हमदर्दी की, यीशु ने शागिर्दों के साथ हमदर्दी की, यीशु ने तमाम दुश्मनों के साथ हमदर्दी की, उनसे मोहब्बत की। उसकी पहली बात तालीम के अंदर हमदर्दी और तरस है। फिर दूसरी बात उसकी खिदमत यानी मनाती के अंदर हमदर्दी और तरस है। और तीसरी बात जो हमने सीखी है वो है उसकी मौत और जी उठने में उसकी हमदर्दी और तरस है। यीशु मसीह तरस से भरे हुए थे, इसलिए उसकी तालीम हमारे लिए भी यही है कि हम भी हमदर्दी से भरे हुए हों, हम भी तरस से भरे हुए हों, हम भी मोहब्बत से और चाहत से भरे हुए हों। मेरा और आपका खुदावंद हमसे ये डिमांड करता है कि हम तरस से भरे हुए, हम रहम से भरे हुए हो, हम में देने का जज्बा हो, हम में दूसरे की मदद करने का जज्बा हो। और यीशु में ये जज्बा था, उसके पैशन में कंपैशन था, यानी उसके जज्बे में हमदर्दी थी, तरस था। आए थोड़ी देर के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने लिए इस तरस को मुझे पाक साफ कर सकता है, तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया। बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह को उस पर तरस आया, और जब यीशु मसीह को उस पर तरस आया है तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया, आगे बढ़कर अपना हाथ उस पर रखा और रख कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक
आगे बढ़ता है, जिसमें तरस है, कोई दूसरे की मदद के लिए, दूसरे की शिफा के लिए, दूसरे की पाकीज़गी के लिए आगे बढ़ता है। ओ यीशु जब गांव-गांव, शहर-शहर फिर रहा है, तो वो हम धरती से, मोहब्बत से और तरस के साथ फिर रहा है। और उसका तरस ऐसे नहीं है कि तरस आ गया जैसे हमें तरस आ जाता है। उसके तरस की बात करूं तो उसका तरस ऐसा तरस है जिसमें चाहत है, जिसमें मोहब्बत है। उसके तरस में लालच नहीं, उसका तरस जबरदस्त है, उसका तरस उत्तम है, उसका तरस उसकी तालीम उसके लफ्जों में ही नहीं है, उसका तरस सिर्फ उसकी बातों में ही नहीं है, उसका तरस सिर्फ उसके कहने में ही नहीं है, बल्कि उसका तरस उसकी सोचों में है, उसका तरस उसके ख्यालों में है, उसका तरस उसके कानों में है, उसका तरस उसकी आंखों में है, उसका तरस उसकी जबान में है, उसका तरस उसके दिल में है, उसका तरस उसके जिगर में है, उसका तरस उसकी जान में है, उसका तरस उसके खून में है, उसका तरस उसके हाथों में है, उसका तरस उसके पाँव में है जहां वो पथरीली जमीन पर चलकर जा रहा है, उसका तरस उसकी सलीबी मौत में भी है, उसका तरस उसके जी उठने में भी है, उसका तरस हमें हर जगह मिल रहा है, उसका तरस मौजूदात में है, उसका तरस उसकी शिफा बख्श कुदरत में है, उसकी शिफाया खिदमत में उसका तरस है, उसकी तालीमात में उसका तरस है। वो तरस से भरा हुआ था, वो चाह से भरा हुआ था, वो हमदर्दी से भरा हुआ था, वो प्यार से भरा हुआ था। उसके खून के एक एक कतरे के अंदर मोहब्बत, चाह और तरस था, उसके लफ्जों में तरस था, उसकी तालीम में शहद के टप्पों की तरह तरस बरसता है। वो तरस से भरा हुआ खुदावंद है, मेरा और आपका खुदावंद तरस रखने वाला खुदावंद है। और वो तरस इस तरह वो महसूस करता है, उसका तरस इस तरह है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखती है, तड़पता हुआ देखती है, तो माँ रहम से भर जाती है, रहम और तरस से भर जाती है। माँ फौरन उस बच्चे दिल में महसूस करती है। इसी तरह मेरा यीशु इंसानियत के लिए जो तरस रखता था, वो तरस अपने दिल से महसूस करता है, वो तरस अपनी अंतड़ियों में वो तरस महसूस करता है। दिलो जान और जिगर में तरस रखने वाला यीशु कौड़ी के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसको तरस आया उस पर। और फिर वो जब खिदमत करते हुए जा रहे हैं, तो वो एक वीराने के अंदर है, और वीराने के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ यीशु के पास आ गई। गिरदोनवा के सब गांव से उसके पास भीड़ आ रही है, दूर दराज से भीड़ उसके पास आ रही है। इतनी भीड़ को देखकर यीशु कहता है, मुझे इन पर तरस आता है। कभी लोगों को देखकर किसी को तरस आया है? यीशु को तरस आता है। यीशु भीड़ को देखकर कहता है, मुझे इन पर तरस आता है। यीशु तरस से भरा हुआ है, उसके लफ्ज़ और आवाज में जो है वो तरस है। उसने कहा, मुझे इन पर तरस आता है। यीशु ने देखा ही तो वो तरस से भर गया। इतनी भीड़ जिनमें वो उनको तरस क्यों आया? इस भीड़ पर यीशु को तरस क्यों आया? इसलिए कि यीशु मसीह ने उस भीड़ के अंदर लाचार लोगों को देखा, बीमारों को देखा, अंधों को देखा, लंगड़ों को देखा, अज़मुर्दा को देखा, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बदरू गिरफ्तार थे, जो इब्लीस की शरारतों में जकड़े हुए थे, उनको यीशु मसीह देख रहा था। उस भीड़ के अंदर वो छुपे हुए थे, उस भीड़ के अंदर वो ऐसे लोग थे, शायद वो शागिर्दों को नजर ना आ रहे हो, वो बीमार लोग
शायद शागिर्दों को नजर ना आ रहे हो, लेकिन यीशु को वो नजर आ रहे हैं। वो बीमार और बदरू गिरफ्तार लोग यीशु को नजर आ रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है, मगर यीशु देखता है, यीशु देख रहा है उनको, इसलिए यीशु को उन पर तरस आया। यीशु को तरस आता है क्योंकि उसके अंदर तरस है, वो पाक दिल है और पाक दिलों में तरस होता है। यीशु तरस से भरा हुआ था, इसलिए जब भी वो कोढ़ी को देखता वो तरस से भर जाता, जो वो अंधों को देखता वो तरस से भर जाता, वो लाचारों को देखता वो तरस से भर जाता, वो पसमुर्दा को देखता, वो फालिज के मरीजों को देखता वो तरस से भर जाता, और जब वो किसी मुर्दा को देखता तो वो तरस से भर जाता। नाइन शहर की बेवा का बेटा मर गया और वो बेवा रो रही थी, वो तड़प रही थी, वो बैन कर रही थी, वो जोर जोर से मातम कर रही थी। उसका एक ही बेटा था और वो मर चुका था। यीशु को उस पर तरस आया, उसने कहा जवान उठ। यीशु तरस से भरा हुआ था, उसने मुर्दे से कहा उठ जवान, वो जिंदा हो गया। यीशु दर्द से भरा हुआ है, यीशु हमदर्दी से भरा हुआ है। यीशु किसी को रोता नहीं देख सकता, यीशु किसी को बीमार, कमजोर, लाचार, दुखी, बदरू गिरफ्तार नहीं देख सकता। यीशु देखता है और दर्द से भर जाता है। हमने दर्द क्यों लिया? हम भी तो खिदमत करते हैं, हम भी तो इबादत करते हैं, हम भी तो यीशु पर ईमान रखते हैं, हमें क्यों नहीं तरस आता? हम तरस की निगाहों से देखते नहीं हैं। उसने कहा यीशु मसीह की तालीम ये है, पहली बात कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कैसी मोहब्बत रख? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। दूसरी मोहब्बत उसने कहा अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। और कैसी मोहब्बत रख? अपनी माने मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत, हमसाए से मोहब्बत, दुश्मन से मोहब्बत। ऐसी तालीम शायद कहीं आपको मिले। ये उत्तम तालीम है, ये जबरदस्त तालीम है, ये रूह कुद्स से भरी हुई तालीम है, ये खुदा के दिल से, खुदा के मुंह से निकलने वाली तालीम है, खुदा के अंदर से जारी होने वाली तालीम है। ये सच्ची तालीम है, ये सच्ची तालीम है, ये आला तालीम है, ये अफसर तालीम है, ये बेदाग तालीम है, ये पाक तालीम है। इसमें तरस है, इसमें मोहब्बत है, इसमें रहम है, इसमें हमदर्दी है, इसमें तरस है। तो यही तालीम हमें यीशु मसीह ने दी है। फिर यीशु मसीह ने खिदमत में जो है, उसकी खिदमत में तरस है। पहला उसकी तालीम में तरस है, फिर उसकी खिदमत और मनादी में तरस है। यीशु तरस से भर गया। सारी खिदमत आप देखें, तालीमात देखें, यीशु मसीह ने ये तालीम पहाड़ पर दी शागिर्दों को। तो यीशु मसीह जो कहता है वो करके दिखाता है। मैं ये ईमान रखता हूं कि जो वो कहता है वो कर देता है, और जो वो दिखाता है वो करके दिखाता है। उसने जो कहा उसने करके दिखाया। उसने पहाड़ पर तालीम दी तो उसने पहाड़ पर अमल करके दिखाया। उसने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, तो उसने कहां पर मोहब्बत की? किसी छुप कर कोने में, किसी कमरे में, किसी घर में नहीं, उसने सबके सामने दुश्मनों के लिए मोहब्बत रखी, दुश्मनों के लिए दुआ की। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह का शागिर्द, यीशु मसीह का हमनवाला, यीशु मसीह का हम प्याला, यीशु मसीह
یسوع مسیح کی شاعر بانی لینے والا ہے تو ان سے بھی محبت رکھ، ان کے لیے برکت چاہ، ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے محبت کے ہمدردی کے جذبات مت کر، بلکہ یسوع نے کہا دوستوں سے ہی نہیں دشمنوں سے بھی محبت رکھ۔ تیسری جو محبت ہے اپنے دشمنوں سے اپنے سونے کا خیال کرتا ہے، اسی طرح اپنے پڑوسی کا خیال کر، محبت کر اپنے پڑوسی سے۔